سامنے تھوڑا بولیے حضرت، آپ کا آواز تھوڑا سنائی دے کم سے کم. آپ جان اس کا اپنا آواز کسی کو سنانا نہیں چاہتے، آپ کی آواز کی جانا چاہیے سامنے رکھیں. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق اللہ. آئیے ہمارا آپ مل کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ درود پاک پیش کر لیجیے. پڑھیے بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. اس کو ذہن میں رکھ کے مجلس میلاد پاک میں بیٹھنا چاہیے. خواہ یہ مجلس ہو یا حضور کے میلاد کی کوئی اور مجلس ہو. یہ بات اگر ذہن میں رہے گی کہ اس مجلس کو خود پروردگار سماعت فرما رہا ہے تو یقیناً نہ ہم سے بے ادبی ہوگی اور نہ ہمارا ذوق شوق کم ہوگا. چنانچہ جو فیض ہم کو ملنا ہے اس مجلس کا یقیناً وہ دوبالا ہو جائے گا. حضرات یہ اس سے نظامی کی بابرکت بافیض اور باوقار مجلس ہے. مہینہ جمادی ثانی کا ہے جسے جمادی الاخر بھی کہتے ہیں اور اس مہینے کو نسبت سید کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بھی ہے. یہ ان کے ولادت پاک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو نسبت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے. یہ ان کے اس سے پاک کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کو نسبت ہمارے 8ویں دادا پیر حضور مولائی مشدی حکیم مہدی حسن شاہ علیہ رحمہ سے بھی ہے کہ یہ ان کے اس سے پاک کا مہینہ ہے. لہذا ان تمام نسبتوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے آج کی اس مجلس میں ہم اور آپ حاضر ہیں. انشاءاللہ ان تمام کا فیض ہم کو اور آپ کو نصیب ہو. آمین. سرنامہ کلام پر گفتگو سے پہلے ایک بات، ایک شاعر کا خیال دماغ میں آ رہا ہے کہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در پر کبھی در بدر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در پر کبھی در بدر. اے غم یار تیرے صدقے میں پل میں کہاں سے کہاں پہنچوں. حضور صاحب سجادہ کی ذات کا معائنہ اور مطالعہ کرنے کے بعد میں ذاتی طور پر اپنی بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. ان کی ذات کو دیکھنے کے بعد مجھے اس شعر کا مطلب واضح ہو جاتا ہے اور پھر صوفیاء کرام کی ذات وغیرہ آپ دیکھیے تو بھی یہ بات عیاں ہو جائے گی. یہ راہ تن آسانی کی راہ نہیں ہے کہ نرم و نازک بستر پر رات گزاریے، روز مرغ و ماہی پر ہاتھ پھیریے، بلکہ یہ راہ جفا کشی کی راہ ہے، ریاضت کی راہ ہے، عبادت کی راہ ہے. بھیس بنانا تو بہت آسان ہے لیکن اس شبیہ کو نبھانا اتنا ہی مشکل ہے. بھیس تو کوئی بنا سکتا ہے، دھوکہ دینے والا بھی بھیس بناتا ہے، اس کو ہم لوگ بہروپیہ کہتے ہیں. لیکن اس روپ کو، اس رنگت کو، جس کو قرآن نے صبغت اللہ کہا ہے، اس کو نباہ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے.
याद आता है हमारे आपके बुजुर्ग ख्वाजा चिश्त के पीर हजरत ख्वाजा इब्राहिम अदहम बल्खी की ज़िंदगी। बल्ख हिंदुस्तान के पश्चिम में एक मुल्क है रूस, अफगानिस्तान से मुत्तसिल है। रूस का ये इलाका है बल्ख, बुखारा, समरकंद। आप बल्ख के बादशाह थे। एक रोज ये हुआ कि भरे दरबार में, दरबार सजा हुआ है, आप तख्ते शाही पर बैठे हुए हैं। अचानक आवाज आती है छत पर किसी के चलने की। हुक्म होता है कि देखो कौन है जो छत पे गर्दिश कर रहा है। हटकारे कारिंदे हुकूमत के उस शख्स को पकड़ के लाते हैं। पूछा जाता है कि भाई छत पर क्या कर रहे हो? रात की इस तारीकी में, सन्नाटे में छत पर क्या तलाश कर रहे हो? कहा कि हुजूर कोई बात नहीं है, हमारा ऊंट गुम हो गया है, उसे तलाश कर रहा हूं। कहा कैसा बेवकूफ है भाई, ऊंट गुम हुआ तो उसे जंगल में, बयाबान में, सेहरे में, आबादी में, वहां देखो, छत पर तुमको ऊंट मिलेगा। आने वाला नबी था चालाक, समझ गया कि बादशाह का मिजाज बदल गया है। अब सिवाय यहाँ कोड़ा और बुर्रा के किसी और चीज से बात होनी नहीं है। फौरन उसने बात का रुख पलटते हुए कहा कि हुजूर, जब आप तख्ते शाही पर बैठ के खुदा को तलाश कर सकते हैं तो मैं आपकी छत पे ऊंट नहीं तलाश कर सकता। इतना सुनना था कि मिजाज बदल गया ख्वाजा इब्राहिम अदहम बल्खी का। कहा कि से रुखसत करो। उठे, चले गए। परेशानी के आलम में कई रोज गुजरा। बात कुछ समझ में आ नहीं रही थी कि अजनबी ने इतना जबरदस्त हमला किया। अजीब बेचैनी का आलम था। कई रोज जब गुजरा, हुकूमत के वज़रा ने मशवरा दिया कि हुजूर नसीबे दुश्मना क्या हो गया है, चलिए शिकार पे चलते हैं, तबीयत बदल जाएगी। कहा हाँ चलो चलते हैं शिकार पर। निकले। थोड़ी देर बाद कहा कि कोई सामान भूल गए, कहा कि लेके आते हैं। फिर अंदर जो गए तो देखा कि उनके बिस्तर पर उनकी कनीज, उनकी नौकरानी सोई हुई है। मिजाज बदल गया बादशाह का कि ये बदतमीजी, बिस्तर है बादशाह का और मामूली लौंडी कनीज उस पर सो रही है। उठाया कोड़ा और 4 कोड़ा रसीद कर दिया। बिलबिलाते हुए कनीज भागी और कहा कि अल्लाह का बहुत शुक्र है। अरे पड़ी है मार और अदा कर रहे हो शुक्र। कहा कि बादशाह सलामत मालूम हो गया कि इस नर्मो नाजुक बिस्तर पर सोने का अंजाम क्या होता है। मैं तो चंद ही लम्हे हमने इस पे गुजारा था तो अल्लाह ने 4 कोड़ा बरसा दिया, और जो जिंदगी भर इस पर सो रहा उसका क्या अंजाम होगा। मिजाज बदल गया। कहा कि अरे ये क्या बात हुआ। निकले और कहा कि लूट लो जिसको लूटना है हुकूमत, मैं चला। और वही आखिरी दिन था। वो इब्राहिम अदहम बल्खी हैं, निकल गए वीराने में। आज उनको उसी वीराने का, उसी दरबदर होने का, उसी भटकने का ये सिला मिला कि ख्वाजा चिश्त उनके मुरीद हैं। ख्वाजा इब्राहिम अदहम बल्खी का कदम मुबारक है और गरीब नवाज का सर अक़दस है। कई पुश्त ऊपर बुजुर्ग हैं वो गरीब नवाज के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के, है ना। याद रखना चाहिए कि खुदा को पा लेना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए कुरान करीम के 4 पारे की पहली आयत है जिसका सीधा समझने वाला मफहूम ये है, लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं है, समझने वाला मफहूम ये है कि तुमको अल्लाह के रास्ते में अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करनी पड़ेगी। तुम क्या समझते हो? कहने को तो उसने कह दिया नहनु अक़रबु फिल वरीद, तुम जानते नहीं हो तुमसे हम कितने नजदीक हैं। तुम्हारा जो शहे रग है, रग कहते हैं नस को, शाह कहते हैं बादशाह को। नसों का जो बादशाह वो ये है, देख लीजिए, ये जिस्म के किसी हिस्से का नस अगर कट जाए तो आदमी जिंदा बच सकता है, लेकिन ये नस अगर कट जाए तो नहीं जिंदा बचेगा। इसीलिए जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो कातिल होते हैं, कोशिश करते हैं कि यही हमला किया जाए,
एक ही बार में मामला खत्म का है, कोई इधर उधर मेहनत करे आदमी, इसीलिए उसको शहे रग कहा जाता है। अल्लाह कहता है देखो जो ये रग कितना अहम है तुम्हारे लिए, हम ही दिया है, कितनी अहम है, इससे भी ज्यादा करीब है हम तुमसे, फिर क्या नहीं मिलता है, फिर क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है कि हम ये चाहते हैं कि सारा काम अपनी तबीयत के मुताबिक करें और खुदा को भी पालें। ये आसान नहीं है, काम तो उसकी शरीयत के मुताबिक करना होगा तब वो मिलेगा। अपने पाने के लिए उसने शरीयत भी भेज दिया, और शरीयत नाम है उसको पाने का। ये नमाज क्या है? ये महज एक ड्यूटी नहीं है, ये महज एक इबादत नहीं है, वाक़तन इबादत है, लेकिन ये एक रास्ता भी है उसको उस तक पहुंचने का। ये एक सीढ़ी है, ये एक जीना है। और याद रखिएगा यही थर्मामीटर है इंसान के तकवा को जांचने का, यही थर्मामीटर है। रात भर आप जागते हैं इबादत में, ठीक है, कौन देखता है, कि 5 वक्त की नमाज जो फर्ज है उससे आप गाफिल हैं, तो आपके इस जागने से और आपके, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं बतौलाबाजी करने से कुछ नहीं होना है। 5 वक्त की नमाज ही जिस पर भारी हो जाएगी, क्या उम्मीद करते हैं उससे आप जफाकशी? वो झूठा है जो ये कहता है कि मैं रात में ये पढ़ लेता हूँ और ये पढ़ लेता हूँ। अरे 5 वक्त तो पढ़ के दिखाओ सबके सामने। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि जमात में नमाज पढ़ो। बोलिए इमाम साहब, कसदन जमात का छोड़ देना कैसा है? यहाँ बैठे हैं उलमाए किराम, मस्जिदों का इंतजाम किया गया कि फर्ज नमाज कहाँ पढ़ो, क्यों जमात में पढ़ो? भाई हम देखें, हम भी देखें तुमको और तुम भी देखो हमको, और तब बात कहना आगे कि हम तहज्जुद पढ़ते हैं और सूरह यासीन का विर्द करते हैं और दरूद ताज पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। पहले ये तो दिखा दो। बात समझिए, ये आसान नहीं है सूफियत, ये आसान नहीं है, ये राह दूसरी राह है। इसीलिए हम लोगों के शजरे में ये तालीम दी गई है। उठा के शजरा देख लीजिए, लिखा हुआ है उसमें कि बेशरा फकीर अगर हवा में भी उड़े तो कायल मत होना। फिर सुनिए, बेशरा फकीर अगर हवा में भी उड़े तो उसका कायल मत होना। और फिर इस्लाम में रिश्ते नाते की तो कोई अहमियत ही नहीं है भाई, वो तो बात ही छोड़ दीजिए उसकी। अमीर माविया का बेटा यजीद हो सकता है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नुम रसीद हो सकता है, अबू जहल का बेटा अकरमा हो सकते हैं। इस्लाम में इसकी कोई असल नहीं है। इस्लाम में असल क्या है? तो कुरान ने कहा ला अक्रमकुम इंदल्लाहि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हमारे नजदीक अहम कौन है? मुत्तकी है, जिसका तकवा अच्छा है, उसी को हम पसंद करते हैं। बेशक चुनांचे हुजूर ज़ियाए रसूल का जो एक तरीका था, हम और आप 1-2 बरस नहीं, कोई 40 साल, कोई 30 साल, कोई 20 साल अपनी आंखों से देखा है। सफर में भी, हजर में भी, जमात में भी, तन्हाई में भी। कोई बता दे कि 1 वक्त की नमाज कज़ा थी? कोई बता दे कि जितने वज़ाइफ वो पढ़ते थे? सफर में निकलना है, सुबह 6 बजे, वजीफा 8 बजे तक होता था, रास्ते भर गाड़ी में वजीफा पढ़ते रहे। ज़ुहर का वक्त हो गया, गाड़ी रोको जी। हर वक्त अपने साथ मुसल्ला रखते थे, बदना रखते थे, वो नहीं जानता है। यहाँ पानी है जी, वजू बना लेंगे, वजू बना लिया, गमछा निकाला, बिछा लिया, नमाज पढ़ लिया। ये है राह, तक़वे की राह। यकीनन इस राह पर जो है वो हमारा है, और जो इस राह पर नहीं है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर हम ताल्लुक रखते हैं तो ये खुद अपनी ही बर्बादी और हिलाकत का हम सामान कर रहे हैं, किसी का हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। अल्लाह ताला हम लोगों के इस कहने को, सुनने को कबूल फरमा ले। हमारे पीरों का जो मिशन है वो मिशन यही मिशन है कि शरीयत मुतहरा से की पासदारी होनी चाहिए, शरीयत मुतहरा की पासदारी होनी चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। ज़बानी कोई बात नहीं होनी चाहिए,
अमली तौर पर नमूना बन करके हमको दिखाना चाहिए। अल्लाह ताला इस मिशन को कबूल कर ले, हमारे पीरों के इस मिशन को फरोग दे और हम लोगों को अपने पीरों के मिशन पर 100% अमल करने की तौफीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलाग।